Good afternoon, students. In the previous class, we learned about the safety rules. If you follow the safety rules, you can't get any electrical shock. Electrical shock once in your life, you feel the shock when you touch any wire. You get a shock that is called electrical shock. In this topic, we study about the electrical shock and its treatment. In this topic, we learn about the what is the electrical shock, and if we get any electrical shock, what is the its treatment. Okay, let us start. In the picture, you can see this boy get electric shock. ठीक है. In the next picture, you can see in the picture various type of treatment is given. In this topic, we will see all the topic or all the treatment one by one. Okay. Electrical shock. What is the electrical shock? An electrical shock can occur when a person comes in direct contact with electricity. When any person comes in direct contact with the electricity, he feel a shock that is called electrical shock. This can damage the skin or internal organs. मीन्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल शॉक है वो आपकी डैमेज और जो आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है उनको भी डैमेज कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक. इन दिस टॉपिक वी विल सी व्हाट इज द कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक. इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के क्या क्या कॉज हो सकते हैं, क्या क्या रीजन हो सकते हैं. First one is lack of knowledge about electrical device and safety rules. First is lack of knowledge about electrical device. इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में आपको नॉलेज कम होना और सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करना. इन द प्रीवियस टॉपिक वी लर्न अबाउट द सेफ्टी रूल्स. इफ यू फॉलो द सेफ्टी रूल्स you can't get electrical shock. That's why we should have about the knowledge about the electrical device and follow the safety rules. If you have not knowledge about the electrical device or safety rules, you can get shock. In the picture you can see he is repairing, so he using safety rules. In the safety rules we study that always wear the रबर ग्लव्स. ठीक है. तो इसमें देखिए ये रबर ग्लव्स पहन रखे हैं इसने, तो इसको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा. इसमें देखिए इसने रबर शूज भी पहन रखे हैं, एक कैप लगा रखी है और इसके पास सेफ्टी टूल्स है. ठीक है. और ये देखो ये चेयर पर खड़ा होके इसकी रिपेयरिंग कर रहा है. सो ही कांट गेट इलेक्ट्रिक शॉक. ओके. नेक्स्ट, second one is touching with wet hand. When in the bathroom you use a geyser. Okay. Then क्या होगा, whenever we touch with, many times you ever seen, many times we touch we touch the geyser with wet hands. Then what will happen, आवर हैंड्स आर वेट, बिकॉज हमारे जो हैंड है वो वेट है. ठीक है. उसमें पानी में भीगे हुए हैं. वी ट्राई टू स्विच ऑफ और स्विच ऑन द स्विच, और जब हम स्विच ऑफ या स्विच ऑन करेंगे विथ वेट हैंड्स, देन वी गेट द इलेक्ट्रिकल शॉक. सो डोंट यूज स्विच ऑन और ऑफ व्हेन योर हैंड इज वेट. ओके. नेक्स्ट, touching. A third one is touching metallic part of device.
when you are use just like electric iron, you touch the metallic part of the electric iron, then you can get the shock. If sometimes what will happen in the electricity, the current get मैक्सिमम, यानी कि इसकी लिमिट से ज़्यादा करंट कभी फ्लो होता है. तो अगर हम सेफ्टी डिवाइस यूज़ नहीं लेंगे, सेफ्टी डिवाइस जैसे फ्यूज़ या एमसीबी, तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. और इफ वी यूज़ द फ्यूज़, देन व्हाट विल हैपन, इफ एक्सेस करंट विल फ्लो, द फ्यूज़ मेल्टेड एंड वी will save. In the second picture you can see this person touch the metal pipe और इसमें फॉल्ट हो रहा है, तो इसको क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा. ठीक है, ओके. फोर्थ वन इज टचिंग ब्रोकन और नॉट इंसुलेटेड जॉइंट. समटाइम्स वी टेक इट वेरी casually and touch it without any safety device like plier, tester, without gloves or without shoes, then what will happen, we get the electrical shock. So never touch a broken or not insulated wire. Next, first aids to be observed in case of electric shock. When we get any electric shock, then we should do treatment. Okay, then if we get any electric shock, so what will we do, let us see. First observe the situation. Okay, क्या करना है, सबसे पहले आपको सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है. ओके, सिचुएशन को ऑब्जर्व कैसे करना है, नेवर रश इनटू द सीन, यानी कि जहाँ पे किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो वहाँ से क्या करना है, रश नहीं करना है, वहाँ पे भीड़ इकट्ठी नहीं होने देना है. और नेवर बी हरी, और वहाँ पे हमें क्या करना है, जल्दबाजी भी नहीं दिखाना है. फर्स्ट ऑब्जर्व द सिचुएशन एंड सी व्हाट कैन वी डू. ओके, इंश्योर योर ओवन सेफ्टी फर्स्ट. ओके, सबसे पहले क्या करना है, आपको सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है. नेक्स्ट आपको एंश्योर द ओवन सेफ्टी, उसके बाद आपकी खुद की सेफ्टी, ओवन सेफ्टी को एंश्योर करना है. ओके, कैन यू हैंडल द सिचुएशन और नॉट, सो ऑब्जर्व फर्स्ट. ओके, सो ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट, इफ विक्टिम इज स्टिल इन कनेक्शन विथ इलेक्ट्रिक सोर्स, देन क्या करना है, इफ victim is still connection with electric shock, then remove the source away by using dry cloth or dry woods. If victim is still in connection with the source, then never try to touch him. तो क्या करना है, आपको उसको टच नहीं करना है. ओके, if you touch him, what will happen, you also get the electric shock. Okay, then what should you do, you should remove the source away by using dry cloth or dry woods. आपको क्या करना है, उसको कनेक्शन को सोर्स से रिमूव करना है by using the dry cloth or dry woods. Never use wet cloth or wet woods. Okay, next, fourth one is check if he is conscious and check type of damage on his or her body. Okay, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो कॉन्शियस है और अनकॉन्शियस है, तो आपको क्या करना है, चेक द डैमेज ऑन इज और हर बॉडी, उसकी बॉडी में क्या डैमेज है. ओके, वो चेक करना है. वेदर ही इज बर्न और नॉट, वेदर ही इज ब्रीथिंग और नॉट, वेदर हिज हार्ट इज फंक्शनिंग और नॉट. ओके, तो आपको उसको चेक करना है कि उसको किस टाइप का डैमेज हुआ है उसकी बॉडी में. ओके, नेक्स्ट, इफ कॉन्शियस. ओके, अगर वो कॉन्शियस है और
बर्न उसकी बॉडी बर्न हो गई है, तो क्या करना है उसको, टेक द हॉस्पिटल इमिडिएटली। ओके, उसको इमिडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना है। इन द पिक्चर यू कैन सी his hand is burned. Okay, then he went to hospital and क्या किया उसने, हॉस्पिटल गया, वो इमिडिएटली हॉस्पिटल गया और उसको हाथ पे उसने उसकी डॉक्टर से चेक करवाया और उसका ट्रीटमेंट करवाया। ओके, नेक्स्ट वन इज इफ he is conscious then check breathing, heartbeat, etc and take to nearest hospital. Okay, if he is unconscious then उसकी breathing check करनी है कि whether it's he is breathing or not, whether his heart is functioning or not, so take to nearest hospital. Okay, in the picture you can see he went to the hospital. Okay, in the picture you can see he went to the hospital and by checking the doctor, उसको डॉक्टर से चेक करवाया। ओके, नेक्स्ट इज इफ he is breathing and heartbeat is stopped. ओके, अगर उसकी ब्रीथिंग और हार्ट बीट स्टॉप हो गई है देन क्या करना है, माउथ टू माउथ रेसिस्टेशन। ओके, एंड CPR यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। ये क्या होता है, इसमें इन द पिक्चर यू कैन सी बाय माउथ टू माउथ। ओके, माउथ टू माउथ रेसिस्टेशन, तो और सेकंड वन इज CPR कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। ओके, तो क्या होता है, एवरीवन कांट डू इट प्रॉपरली। ओके, एनी पर्सन हु इज इनफ ट्रेंड टू डू दिस ही इज ओनली शुड डू इट। ओके, कोई प्रॉपरली ट्रेंड है उसी को ये करना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, रेदर देन हेल्पिंग द विक्टिम इट मे क्रिएट मोर प्रॉब्लम। ओके, अगर कोई इसको अच्छे से नहीं जानता है, ओके, देन अगर वो ऐसा करेगा तो हो सकता है कि वो उसकी हेल्प करने के बजाय उसके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। ओके, देन ठीक है, तो ट्राई टू ऑब्जर्व द सिचुएशन एंड ट्राई व्हाट इज नीडफुल दैट टाइम। ओके, okay, this is the end of the topic. I hope you have got all the points very easily. If you have any doubt you can ask. Okay, thank you very much.